So we are going to do the doctrine of Christ, continue with the doctrine of Christ. आज हम मसीह की शिक्षा को जारी रखेंगे. Today we are going to look at the states of Christ. आज हम मसीह की दशा को देखेंगे. The life of Christ can be divided into two states or conditions. देखिए, मसीह के जीवन को हम दो दशाओं में बांट सकते हैं. They are divided into two states or conditions based on his relationship with God's law. मसीह का जो रिश्ता है परमेश्वर के व्यवस्था के साथ, उस आधार पर हम उसके जीवन को दो दशाओं में बांटते हैं. So let me just explain that. मैं उसको समझाना चाहूँगा. The first state of Christ is the state of humiliation. मसीह का जो पहला दशा है वो है दीनता की दशा. दीनता की दशा, the state of humiliation. In the state of humiliation, he was a servant under the law. He was a servant living under the law. इस दीनता की दशा में वो व्यवस्था के अधीन रहने वाला एक सेवक था. And the second state is the state of exaltation. और दूसरी दशा है वो है महानता की दशा, उसके महानता की दशा. In the state of exaltation, he is the Lord above the law. और इस महानता की दशा में वो व्यवस्था के ऊपर रहने वाला प्रभु है. In both these states, his life situation changed. इन दोनों दशाओं में उसके जीवन की स्थिति में बदलाव आता गया. And therefore, we are going to learn about the various stages of his life in these two states or condition. और इसलिए हम उसके दोनों दशाओं में उसके जीवन के अलग अलग चरणों के बारे में आज सीखेंगे. Let me first talk about the state of humiliation before I go into the stages. मैं इस दीनता के दशा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा उसके चरणों को देखने से पहले. Christ is the sovereign ruler of the universe. मसीह इस संसार पर परम प्रधान राजा है. Last time, from Colossians chapter 1 and verse 16, we learned that all things were created by him, through him and for him. पिछली बार हमने कोलोसियों के पहले अध्याय 16वें आयत में हमने सीखा था कि उसी में और उसी के द्वारा और उसी के लिए सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई. And as a sovereign ruler of the universe, he was divinely majestic. और इस संसार के परम प्रधान राजा के रूप में उसका एक दिव्य प्रताप था. But in the state of humiliation, he laid aside his heavenly majesty. Now be careful, he did not lay aside his divine nature. He laid aside his heavenly majesty and assumed a human nature. इस दीनता की दशा में मसीह ने अपने दिव्य प्रताप को छोड़ दिया. अपने दिव्य प्रताप को छोड़ दिया. देखिए, दिव्य चरित्र को नहीं छोड़ा है, दिव्य प्रताप को छोड़ दिया और एक मानवीय चरित्र को उसने अपनाया. He took the form of a servant. वो एक सेवक के रूप में आया. The supreme lawgiver, the one who gave us the law, he himself became submissive to the demands and the curse of his own law. व्यवस्था को देने वाला परम प्रधान अपनी ही व्यवस्था के अधीन हो गया और उसके श्राप के अधीन हो गया. मैं इसको कुछ आयतों से मैं दिखाना चाहूँगा. Let me just show that with a few verses. गलातियों का 4था अध्याय और उसका 4था आयत.
Galatians chapter 4 and verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. So he was born under the law. उसने व्यवस्था के अधीन होकर जन्म लिया. I want you to read Luke chapter 2 and verse 22 to 24. लूका का दूसरा अध्याय और उसका 22 से लेकर 24. And when the time came for their purification, so here we are talking about Jesus's dedication. जब यीशु मसीह का जो समर्पण होता है मंदिर में जाकर, वहां उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. That is what he is talking about. When the time came for their purification, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. यहाँ लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए. जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा. और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें. तो what we see here is that his life was subject to the law. हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका जीवन व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था के अनुसार उसे जीना था. He was under the law. He had to live his life according to the law. We'll also read Philippians chapter 2. हम फिलिपियों का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे and verse 6 to 8 और 6वें आयत से 8वां आयत. Talking about Jesus Christ, he says, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Shows that he was obedient to God. वहां पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था. एंड वन मोर वर्स, एक और आयत, गलातियों का तीसरा अध्याय और 13वां आयत, Galatians chapter 3 and verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. So you see here that he took the curse of the law to redeem us from the curse of the law. यहाँ पर लिखा गया है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है. तो यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाने के लिए अपने आप के ऊपर व्यवस्था के शाप को ले लिया. तो इस दीनता की अवस्था में पहले चरण के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज इन दिस स्टेट ऑफ ह्यूमिलिएशन. द फर्स्ट स्टेज was the incarnation and birth of Christ. दीनता की दशा में पहला चरण था मसीह का देहधारी होकर जन्म लेना.
So the first stage in the state of humiliation is the incarnation and birth of Christ. दीनता की दशा में पहला चरण था मसीह का देहधारी होकर जन्म लेना. Now, God is spirit. देखिए, परमेश्वर आत्मा है. And spirit does not have flesh and bones. और आत्मा का देह या हड्डी नहीं होता है. But in the incarnation, the Son of God became flesh by assuming a human nature. लेकिन देह धारण के द्वारा, देह धारण में परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने एक मानवीय चरित्र को अपनाकर देह बन गया, वो या शरीर बन गया. जो आत्मा था वो देह बन गया. इसको हम कहां पढ़ेंगे? यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 14वें आयत को हम देखेंगे. लेट्स रीड जॉन चैप्टर 1 and verse 14. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. और वचन यानी यीशु मसीह को वचन कह के पुकारा जा रहा है यहाँ पर. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. एक और आयत पढ़ेंगे, वो है पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 2 आयत. Another verse that we are going to read is 1 John chapter 4 and verse 2. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. That means if we are indwelt by the Holy Spirit of God, our confession says that Jesus Christ came in the flesh. वहां लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है. तो यानी अगर पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है तो हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह देह लेकर इस पृथ्वी पर आया. He became a human by being born of Virgin Mary. कुंवारी मरियम से जन्म लेकर वो एक मनुष्य बना. The Bible teaches the virgin birth in many places. बाइबल हमें सिखाता है कि मसीह ने एक कुंवारी से जन्म लिया. Virgin birth means that his conception was not the result of a sexual union between a man and a woman. कुंवारी से जन्म लेने का मतलब यह है कि उसकी उत्पत्ति एक पुरुष और स्त्री के लैंगिक संबंध के द्वारा नहीं हुआ है. Rather, it was due to the supernatural influence of the Holy Spirit. बल्कि पवित्र आत्मा के अलौकिक प्रभाव से यह हुआ. In this way, since its inception, the human nature of Christ was free from the pollution of sin. और इस तरह शुरुआत से ही मसीह का मानवीय चरित्र पाप के प्रदूषण से मुक्त था. उसलिए उसको पवित्र बालक कहा जाता है. That is why he is also called holy child. हम पढ़ेंगे लूका के पहले अध्याय और उसके 34 और 35 आयत को पढ़ेंगे. Let's read Luke chapter 1 and verse 34 and 35. And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy." So it's a holy child, the Son of God. वहां लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. तो ये बालक जो है पवित्र बालक है. The second stage
in the stage of humiliation was was the sufferings of Christ. दीनता की दशा में दूसरा चरण था मसीह का दुख उठाना. Some people think that Christ suffered only towards the end of his life. कुछ लोग ये सोचते हैं कि मसीह ने सिर्फ अपने जीवन के अंत में दुख उठाया. But that is not correct. लेकिन ये सही नहीं है. His whole life was a life of suffering. उसका पूरा जीवन एक दुख भरा जीवन था. And the sufferings of his soul were more intense than the sufferings in his body. और अपने प्राण में जो उसने दुख का अनुभव किया वो उसके शारीरिक दुखों से ज्यादा तीव्र था. He was tempted by the devil continuously. वो शैतान ने उसे लगातार परखा. Being a sinless man, he was oppressed in a sin affected world. एक निष्पाप व्यक्ति होकर उसने इस पापमय दुनिया में बहुत जुल्म सहा. And was burdened with the sins of many. और बहुतों के पाप का बोझ उस पर लाद दिया गया. That is why in Isaiah 53 and verse 3 it says that he was a man of sorrows and acquainted with grief. उसीलिए यशाया के 53वें अध्याय और उसके 3रे आयत में लिखा है वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी. So that was the second stage of his humiliation. और वो है उसकी दीनता की दशा का दूसरा चरण. तीसरा, the third stage in the state of humiliation was the death of Christ. दीनता की दशा में तीसरा चरण था मसीह का मृत्यु. Christ did not die as a result of an accident nor by the hand of an assassin. देखिए मसीह का मृत्यु किसी अकस्मात के कारण नहीं हुआ, ना ही किसी हत्यारे के हाथों हुआ. Rather through the Roman punishment of crucifixion, बल्कि रोमियों के द्वारा सूली पर चढ़ाने के द्वारा हुआ. And this death was according to the predetermined plan of God. और उसकी मृत्यु परमेश्वर के ठहराई हुई योजना के अनुसार हुआ. उसकी मृत्यु एक योजना के अनुसार, परमेश्वर के बनाए योजनाएं के अनुसार हुआ. His death was according to the plan, the predetermined plan of God. ये कहाँ लिखा है? प्रेरितों का कृत्य 2रा अध्याय और उसका 23वें आयत को हम पढ़ेंगे. Let's read Acts chapter 2 and verse 23. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला. The Old Testament, in the Old Testament, God had given a law through Moses that when a man commits a sin worthy of death, he was first to be executed and then his body was hung on a tree or impaled to a wooden post. पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को एक नियम दिया था कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दंड के योग्य एक पाप को करे तो उससे पहले मार दिया जाता है. फिर उसके मृत शरीर को वृक्ष पर लटका देते हैं अथवा किसी काठ पर लटका देते हैं. This hanging or impalement shows that he was a cursed man. ये लटकाना उस बात को दर्शाता था कि ये एक श्रापित व्यक्ति है. That the curse of the law was upon him, कि व्यवस्था का श्राप इस व्यक्ति के ऊपर है. This was done in order to shame him further. ये इसलिए किया जाता था कि उसका
और भी अपमान हो, मरने के बाद भी इस व्यक्ति का अपमान हो। ये कहाँ लिखा गया है? वेयर इज दिस रिटन? दिस इज, यू विल फाइंड दिस इन ड्यूट्रॉनमी एंड चैप्टर 21 एंड वर्स 22 to 23, व्यवस्था विवरण, और उसका 21वां अध्याय और उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 22 और 23, Deuteronomy chapter 21 verse 22 and 23. And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. So you see that a man is committed a crime worthy of death. He is first put to death, then hung on a tree, and it says that he is a man who is cursed by God. वहां लिखा है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो प्राण दंड के योग्य किसी पाप को करता है, उसको पहले मार दिया जाता है, फिर उसके शव को वृक्ष पर लटका दिया जाता है, और फिर बोला जाता है कि परमेश्वर का शाप उस व्यक्ति के ऊपर है। That is what we see there. But Paul later on in the New Testament, लेकिन जब पौलुस नए नियम में आता है, Paul interprets that Jesus' death on a Roman cross showed the application of this law. पौलुस इस बात का व्याख्या करता है कि एक रोमी क्रूस पर यीशु के मृत्यु इसी नियम के अनुसार था। Our sins, now listen to me carefully, ध्यान से सुनिएगा, our sins make us worthy of death punishment according to God's law. देखिए, हमारे पाप हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मृत्यु दंड के योग्य बनाता है। The curse of the law is upon us. परमेश्वर के व्यवस्था का श्राप हम पर है हमारे पापों के कारण। Because of our sins, the curse of the law is upon us. But our sins were laid on Jesus, and he was put to death on a cross. लेकिन हमारे पापों को निष्पाप यीशु पर लाद दिया गया और एक सूली पर उसको मार दिया गया। This shows that he took the curse which was supposed to fall on us. ये इस बात को सिखाता है कि उसने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया जो हम पर आना चाहिए था। He took our shame. उसने हमारे अपमान को सहा, and gave us his righteousness and the hope of eternal life. और उसने हमें अपनी धार्मिकता दी और अनंत जीवन की आशा दी। इसको हम पढ़ेंगे। Let's read that in Galatians chapter 3 and verse 13. हम गलातियों के तीसरे अध्याय 13वें आयत को हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा, इसको पहले फिर से पढ़ेंगे। Let's read that once again. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. That's a quotation from Deuteronomy 21. वहां पर लिखा गया, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। मसीह ने क्यों शाप लिया? हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाने के लिए, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। Now we come to the fourth stage. अब हम चौथे चरण पर आएंगे। And the fourth stage in the state of humiliation
was the burial of Christ. दीनता की दशा में चौथा चरण था मसीह का गाड़े जाना. After Good Friday, we get ready for celebrations on Sunday, Easter celebrations on Sunday. हम इतवार पर होने वाले ईस्टर को, गुड फ्राइडे के बाद हम इतवार पर होने वाले ईस्टर के धूमधाम के लिए हम तैयार हो जाते हैं. From Saturday itself, we get into a joyous mood. हम शनिवार से ही हमारे आनंद का हमारा एक माहौल बनना शुरू हो जाता है. But we forget that after his death on the cross, Jesus' body was laid in a tomb. लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु के उसके क्रूस पर उसके मृत्यु के बाद यीशु के शरीर को कब्र में रखा जाता है. So his body is in the tomb, तो उसका जो शरीर है वो कब्र में है. And his human soul entered into the state of death. और उसका जो मानवीय प्राण था, आत्मा, वो मृत्यु की दशा में प्रवेश करता है. This disembodied state of death is called Sheol in Hebrew and Hades in Greek. इस मृत्यु की इस देह मुक्त अवस्था को इब्रानी में शियोल या यूनानी में हेडिस कहते हैं. हिंदी में उसका अनुवाद है अधोलोक. It does not have the meaning of heaven or hell. उसका अर्थ ये नहीं होता है स्वर्ग या नरक. शियोल और हेडिस just means the realm of departed spirits. शियोल या हेडिस या अधोलोक का मतलब इतना ही होता है कि दिवंगत आत्माओं का क्षेत्र. So between Good Friday and Easter Sunday, Jesus was in the power of death. तो Good Friday और Easter Sunday के बीच में यीशु मृत्यु के वश में रहा. इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? Where do we find that? Right? Let's read Acts chapter 2 and verse 24. प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय और उसके 24वें आयत को हम पढ़ेंगे. God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता. So his agony of death ended only when he was resurrected. Till then he was held in the power of death. वो मृत्यु के बंधन से सिर्फ उसके पुनरुत्थान पर छूटता है, तब तक वो मृत्यु के वश में रहा. So the humiliation of Christ did not end at his death on Good Friday. His burial thereafter was also a part of his humiliation. तो मसीह के दीनता का अंत गुड फ्राइडे पर उसके मृत्यु पर नहीं हुआ, उसके बाद उसका गाड़े जाना भी उसके दीनता का भाग है. Now we'll go to the second state. हम अब उसके दूसरे दशा को देखेंगे, and that is the state of exaltation, और वो है उसकी महानता की दशा. In the state of humiliation, Christ was born under the law. He paid the penalty for our sins, and he purchased righteousness and eternal life for us. दीनता की दशा में होकर मसीह ने व्यवस्था के अधीन होकर जन्म लिया. उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन को खरीदा क्रूस के ऊपर. After this, he was crowned with glory and honor. और फिर उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया गया. He was no more a servant under the law, but went back to being the Lord of the law. अब वो व्यवस्था के अधीन रहने वाला सेवक नहीं, पर फिर से उस व्यवस्था का प्रभु बन गया.
This state of glory and honor is called the state of exaltation. इस महिमा और आदर की दशा को महानता की दशा कहते हैं. So let's learn the four stages in this state. तो आइए हम इस दशा के 4 चरणों के बारे में सीखें. The resurrection of Christ is the first stage. उसका पुनरुत्थान पहला चरण है. The resurrection of Christ does not merely mean that his body and soul were reunited. देखिए, मसीह के पुनरुत्थान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसका शरीर और प्राण फिर से मिल गए. Rather, in his resurrection, human body and soul was not only restored to its original beauty and strength that was there before sin. In fact, it was raised to a new level of beauty and strength. बल्कि पुनरुत्थान में मानवीय शरीर और प्राण को पाप के आने से पहले के उसके सुंदरता और शक्ति में सिर्फ पुनर्स्थापित नहीं किया गया, बल्कि असल में उसके सुंदरता और शक्ति को एक नए स्तर पर लेकर जाया गया. यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे ये होता है, मानवीय शरीर और प्राण एक नए लेवल पर पहुंच जाता है. The human body and soul reaches a new level in the resurrection of Jesus Christ. इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? Let's read that in 1 Corinthians 15 and verse 42 to 44. पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 42 से लेके 44वां आयत हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians 15 42 to 44. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. देखिए, it shows there that it is at the resurrection, it is an imperishable body, glorious body, powerful body and a spiritual body. वहां लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है. शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है. वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है. निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है. स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है. तो पुनरुत्थान के में क्या होता है? वो एक अविनाशी शरीर को पाता है, तेजोमय शरीर को पाता है, सामर्थी शरीर को पाता है, एक आत्मिक शरीर को पाता है. And the resurrection of Christ has a threefold significance. और मसीह का जो पुनरुत्थान है उसके 3 मुख्य महत्व है. The first significance is it was God's vindication of what Christ did for us on the cross. उसका पुनरुत्थान परमेश्वर ने उसको सही ठहराया. उसके पुनरुत्थान में परमेश्वर ने उसको सही ठहराया. क्रूस पर उसने जो किया उसको सही ठहराया. It was God's declaration that Christ has met all the requirements of his law. वो परमेश्वर की तरफ से ये घोषणा है. यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर की तरफ से एक घोषणा है कि मसीह ने उसके व्यवस्था के हर नियम को पूरा किया है. That is why we read in Philippians chapter 2 and verse 8 to 9. हमने उसी लिए फिलिपियों के दूसरे अध्याय 8 और 9 में क्या पढ़ा था? एक और बार पढ़ेंगे. फिलिपियों का दूसरा अध्याय 8 और 9. Philippians 2 verse 8 and 9. And being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient. So that means he was obedient. He fulfilled God's law to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. और लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया. यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. अब वो परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति पूरी तरीके से आज्ञाकारी था, यहां तक कि वो उसके मृत्यु भी सहने के लिए तैयार था. फिर लिखा है,
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. The second significance of the resurrection of Christ is that it symbolizes the spiritual and physical resurrection of all believers. दूसरा जो महत्व है ये मसीह के पुनरुत्थान का वो ये है कि वो विश्वासियों के आत्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान का प्रतीक है. It symbolizes the spiritual and physical resurrection of all believers. हम एक बार रोमियो का 6वां अध्याय और 4था आयत पढ़ेंगे. Let's read Romans chapter 6 and verse 4. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. So, in baptism, when we go under the waters, it symbolically shows that through Christ's death and burial, our old sinful self has also died and been buried. And when we come out of the waters, it shows that through Christ's resurrection, we have experienced a spiritual resurrection first. And that is why he says, so we too might walk in the newness of life. देखिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जाकर हम जब बपतिस्मा लेते हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि मसीह के मृत्यु और गाड़े जाने के द्वारा हमारा पुराना मनुष्य भी मारा गया और गाड़ा गया. वो इस बात का प्रतीक है कि मसीह, और जब हम पानी से निकलकर बाहर आते हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि मसीह के पुनरुत्थान से हमारा आत्मिक पुनरुत्थान पहले होता है, फिर शारीरिक पुनरुत्थान भी होता है. पहले आत्मिक पुनरुत्थान होता है, उसलिए वो वहां पर लिखता है वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले. So Christ's resurrection also symbolizes our physical resurrection. देखिए, मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे शारीरिक पुनरुत्थान का भी प्रतीक है. उसलिए देखो 8वें आयत में देखो वहां पर क्या लिखा है. See what is written there in verse 8. Now if we have died with Christ, we believe that we also live with him. इसलिए यदि हम 8वें आयत को पढ़ रहा हूं वहां पर, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी. तो यानी वो अब होने वाला है, वो हमारे शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है. एक और आयत में दूंगा, 1 Corinthians and chapter 6, 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 and verse 22. पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 22वां आयत. 1 Corinthians chapter 15 and verse 22. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. For this reason, Jesus is also called the first fruits of those who are asleep. इसीलिए इस कारण से यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ. And he's also called the firstborn from the dead. इसलिए वो बोला जाता है कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलौता है. The third significance, तीसरा जो महत्व है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, it's that it is the cause of our spiritual and physical resurrection. First I said that it is symbolic.
Now I am saying that it is also the cause of our spiritual and physical resurrection. ये अब मसीह का पुनरुत्थान, पहले मैंने बोला कि वो प्रतीक है हमारे आत्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान का. अब मैं ये बोल रहा हूं कि वो कारण है हमारे आत्मिक और शारीरिक पुनरुत्थान का. इसको हम कहां पढ़ेंगे? Let's read 1 Peter and chapter 1 and verse 3 and 4. पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका तीसरा और चौथा आयत. See what's written there. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, he has caused us to be born again to a living hope. So, because of the resurrection of Jesus Christ from the dead, that is the reason, that is the cause that we are born again today to a living hope. And what is that living hope? Verse 4 says, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. So, a part of this inheritance, this imperishable, undefiled, unfading inheritance is a resurrection of our bodies, an imperishable, undefiled, and unfading body. देखिए वहां पर ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यानी यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठना, ये कारण है किसका? अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. तो यानी उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने अब हम पर दया कर कर एक नया जन्म दिया है. अर्थात यानी वो पहले बोलता है वो बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. तो पहले नया जन्म दिया और वो नया जन्म एक बड़ी आशा की तरफ है. वो क्या है वो बड़ी आशा? अर्थात चौथा आयत बोलता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. तो इस मिरास, ये जो अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास का भाग है कि हम एक अविनाशी शरीर को भी पाएंगे. So that is one stage of Jesus' exaltation. तो ये जो है यीशु मसीह के महानता का पहला चरण है. The second stage in the state of exaltation was his ascension to heaven. मसीह के महानता के दशा में उसका दूसरा चरण था मसीह का स्वर्ग आरोहण. In his divine nature, Christ is omnipresent. उसके दिव्य चरित्र में मसीह सर्वव्यापी है, वो सब जगह मौजूद है. He is present everywhere. So when we talk about the ascension of Christ, we are talking about his human nature which ascended from earth to heaven. तो अभी हम यहाँ पर हम जब मसीह के स्वर्ग आरोहण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके मानवीय चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पृथ्वी पर से स्वर्ग की ओर आरोहण होता है. This was a further glorification of his human nature. ये उनके मानवीय चरित्र की महिमा में और उन्नति को दर्शाता है. But the Bible talks about it in many places. बाइबल इसके बारे में बहुत सारे जगहों पर सिखाता है. उनमें से दो जगहों को हम देखेंगे. Let's look at two of them. लूका के 24वें अध्याय, लूका का 24वां अध्याय और उसका 50 और 51 आयत. Luke 24 and verse 50 and 51. Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands he blessed them. When he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. तब वह उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया. एक और आयत, कुछ और आयतों को देखेंगे. एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 9 to 11. प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय
और उसका 9 से 11 भी पढ़ेंगे. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. ऐसा लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा. So Christ ascended to heaven to prepare a place for his people. यीशु मसीह स्वर्गारोहण क्यों करता है? एक कारण यह है कि वहां पर वो अपने लोगों के लिए एक जगह तैयार करने गया है. Jesus went to heaven to prepare a place for his people. And we have an assurance that we will have a place in heaven because Christ talked about it and prayed about it. और हमें इस बात का आश्वासन है कि हमें स्वर्ग में एक जगह प्राप्त होगी, क्योंकि मसीह ने इसके बारे में बात किया और उसके लिए प्रार्थना भी किया. कहाँ किया? Let's read that in John chapter 14 and verse 1 to 3. हम यूहन्ना के 14वें अध्याय और उसके पहले 3 आयतों को पढ़ेंगे. John 14 verse 1 to 3. This is what Jesus says. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself. And where I am, you may be also. वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो. वो अपने चेलों से कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है. यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो. और वो प्रार्थना कहाँ करता है इसके लिए? यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसका 24वां आयत. Where does he pray for that? In John chapter 17 and verse 24. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. So he's asking the Father that the people whom he has given him might be with him and they might be able to see his glory. वो कहता है कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा. तो वो पिता से प्रार्थना करता है कि जिन लोगों को तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ हो वहां स्वर्ग में, ताकि वो भी मेरे महिमा को देख पाए. The third stage in the state of exaltation was his going and sitting at the right hand of God. देखिए, महिमा की दशा में तीसरा चरण था मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठता है. After his ascension, Christ was seated on the right hand of God. उसके स्वर्ग आरोहण के बाद मसीह जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठते हैं. 1 Peter chapter 3 and verse 22 says something about Christ. पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां आयत मसीह के बारे में कुछ बोलता है. देखिए क्या लिखा है वहां पर. So it's talking about Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God,
with angels, authorities and powers having been subjected to him. वो लिखा है, ये मसीह के बारे में बोल रहा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं. The verse says that having gone into heaven, he sat at the right hand of God. वचन कहता है कि वो स्वर्ग गया और वो परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा है. At the right hand of God, on the basis of his sacrifice on the cross, Christ is now interceding for his people. अभी मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर कर क्या रहा है? परमेश्वर के दाहिने ओर क्रूस पर किए गए उसके बलिदान के आधार पर मसीह अपने लोगों के लिए निवेदन कर रहा है. यह है उसका काम, दाहिने ओर बैठकर. कहां पढ़ सकते हो उसको? रोमन्स 8 and verse 34. इसको हम रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 34वें आयत में पढ़ सकते हैं. रोमन्स 8 and verse 34. रोमियो का 8वां अध्याय 34वां आयत. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. And being at the right hand of God also means that he is right now the ruler of the universe. परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठने का मतलब ये भी है कि वो इस संसार पर राज्य करता है. कहाँ? Where do we find that? Let's read Ephesians chapter 1 verse 20 and 21. एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पढ़ेंगे. That he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. See, and then what? Far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. लिखा है वहां पर, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया. So that was the third stage in a state of exaltation. तो ये जो है उसका तीसरा चरण था उसके महानता की दशा में. The fourth and final stage in the state of exaltation will be his second coming. महानता की दशा में चौथा और आखिरी चरण ये होगा कि मसीह का दूसरा आगमन होगा. There will be a second coming of his. The exaltation of Christ reaches its summit at his second coming. मसीह की महानता उसके चरम सीमा को छुएगी जब उसका दूसरा आगमन होगा. The time of his second coming is not known to us. उसका दूसरा आगमन कब होगा हमें नहीं पता है. But his return will be bodily. That means he will come with a body and it will be visible to all. और उसका जो दूसरा आगमन है वो शारीरिक होगा, वो अपने शरीर में आएगा और हर व्यक्ति के सामने वो प्रत्यक्ष होगा. Let's read Revelation 1 and verse 7. आइए हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और उसके 7वें आयत को पढ़ें. प्रकाशित वाक्य और पहला अध्याय 7वां आयत. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. Every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, Amen. देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी. वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. हाँ, आमीन. And he's coming with a purpose. और वो कुछ उद्देश्यों के साथ आ रहा है. क्या उद्देश्य है उसके दूसरे आगमन का? What is the purpose of his second coming? First, the first purpose
is to judge the living and the dead. उसका पहला उद्देश्य यह है कि वो जीवते और मरे हुए लोगों का न्याय करने आ रहा है. हम जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ेंगे. प्रेरितों का कृत्य 10वां अध्याय और 42वां आयत. लेट्स रीड Acts chapter 10 and verse 42. Acts chapter 10 and verse 42. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है. ओके, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 16. रोमियो का दूसरा अध्याय और उसका 16वां आयत. रोमन्स 2 वर्स 16. On that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और उसका 10वां आयत हम देखेंगे. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए. And then 2 Timothy chapter 4 and verse 1. दूसरा तिमोथियोस का 4था अध्याय और पहला आयत. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom. परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं. So he is coming to judge the living and the dead. वो मरे हुए और जीवते लोगों का न्याय करने आ रहा है. दूसरा उद्देश्य, the second purpose is to perfect the salvation of his people. दूसरा उद्देश्य ये है कि वो अपने लोगों का उद्धार जो है उसको सिद्ध करने के लिए आ रहा है. In other words, to complete his redemptive work. वो अपने उद्धार, उसके छुटकारे के कार्य को वो पूरा करने के लिए आ रहा है. Let's read 3 verses. 3 आयतों को हम पढ़ेंगे. Philippians chapter 3 and verse 20 and 21. फिलिपियों का तीसरा अध्याय 20 और 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. हमारा जो दीनहीन शरीर है वो उसके महिमामय शरीर के अनुसार हो जाएगा. Our lowly body will be transformed into a glorious body like his. Colossians chapter 3 and verse 4. कोलोसियों का तीसरा अध्याय और चौथा आयत. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. The last verse, आखिरी आयत, पहला थिस्सलुनीका का चौथा अध्याय और उसका 16वां आयत से लेके 18वां आयत. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18.
For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. लिखा है वहां पर, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। This is the hope of all those who believe in Jesus Christ. ये है हमारी आशा। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए ये आशा है।